Students, now today we will start part 2, source of energy. In the previous part we have discussed about the conventional source of energy, biogas, biomass, wind energy. In that part we will discuss about the non-conventional source of energy or alternate source of energy. So as the name suggested, alternate source of energy. In the previous video we have discussed about that our maximum need of energy is fulfilled by the fossil fuels, and the fossil fuels are the limited source. They may be finished one day. So now that's why we have discussing or we are focusing on the alternate source of energy. So what are the alternate source of energy, or what are the non-conventional source of energy? So as the conventional source of energy are those which are non-renewable, limited, or may be finished one day. But the alternate or non-conventional source of energy are those source of energy which last for the long times, and that are the renewable source of energy. So in the 14.3, that is point 14.3, in that we will discuss about that why we are discussing or why we are thinking about the alternate source of energy. Because as our population increases and as the technology improves, so we are more dependent on the source of energy to fulfill our daily needs. And as the fossil fuel are limited, so if we will use only fossil fuel to fulfill our daily needs, so that fossil fuel may be last or maybe finish one day. So that's why we have thinking about the alternate source of energy. So the first alternate source of energy is solar energy. So it is clear from name what is solar energy. So solar means sun. The energy that we get from the sun is called solar energy. Clear? So that is called solar energy. Now the sun radiating enormous amount of energy at present rate. At present मीन्स जो सन है वो इस टाइम भी आपके पास अनमलस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है, और ये 5 बिलियन पहले से भी कर रहा है और 5 बिलियन जो आगे हैं उसमें भी करेगा. तो मीन्स वी कैन थिंक अबाउट द सन कि सन इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू फुलफिल आवर नीड्स. क्लियर? बट द मेन पॉइंट इज दैट कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन रीच टू द अर्थ सरफेस. Clear? Means maximum amount of energy is observed by the atmosphere and the outer surface of the earth. Only few amount or only some amount of energy is reached to the earth surface. Now there is a fact file. Do you know? In that there is a mention that ki the India is very lucky because in India in the greater part of the year sun shines. So we will get maximum energy from the sun. Clear? So in the during whole year the India receives near about or more than 5,000 trillion kilowatt energy from the sun. Clear? The daily average varies from 4 to 7 kilowatt hour per meter. So in that paragraph there is a comes a definition known as solar constant. So this definition you have to read it and write on your notebook. Clear? So this now we will more discuss about the solar energy. So solar energy, the energy which we get from the sun. Sun is रेडिएट अनमलस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन पहले और 5 आगे. तो हम सोलर एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं कि सोलर एनर्जी हमारी जो फॉसिल फ्यूल की नीड है उनको कम कर सकती है. सो नाउ विल डिस्कस. देयर इज अ डायग्राम. दिस इज सोलर कुकर. सो ऑब्वियस व्हाट इज सोलर कुकर? सोलर कुकर वो डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा. कुकर है तो इसका मतलब इट इज यूज टू कुक द फूड. क्लियर? सो दिस इज नोन एज सोलर कुकर. अब यहाँ पे सोलर कुकर के बारे में 2-4 बातें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर कुकर में होगा मिरर. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिरर? मिरर का क्या काम है? द फंक्शन ऑफ मिरर इज दैट इट फोकस द सनलाइट इनटू द सोलर कुकर. कि जो लाइट मिरर पे पड़ेगी मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो सोलर कुकर के अंदर ट्रैप होगी. क्लियर? नाउ देयर इज मेंशन अ ग्लास शीट विच इज मेंशन विद अ ब्लू लाइनिंग. ग्लास शीट. अब जो ग्लास शीट है बेटा ये क्या करेगी? इट अलाउ एंटर द सनलाइट इनटू द सोलर कुकर बट इट डजंट अलाउ that heat or that radiation come out from the solar cooker. Means जो glass sheet है इसका काम है trap the heat or trap the sun radiations. Clear? And it is also you have seen here it is black from the inside. तो ये black reason इसलिए है because black color observe the maximum heat in which is mentioned the first line. A black surface observe more heat as compared to white or reflecting surface. Solar cooker and solar water heater are
use this property in the working. Some solar cooker achieve high temperature by using a mirror to focus the ray of sun. अब जो आपके सोलर कुकर होंगे वो दो तरह के होंगे। एक के अंदर प्लेन मिरर होगा जो आपके घरों में लगा होता है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो मिरर है, क्लियर, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा वो होगा जिसके अंदर प्लेन मिरर को रिप्लेस कर दिया जाएगा कनकेव मिरर के। जो कनकेव मिरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपका चैप्टर आएगा 11th, उसमें डिस्कस। लेकिन कनकेव मिरर का काम ये है बेटा कि जो कनकेव मिरर क्या करता है, सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। मतलब सन से जितनी रेडिएशन आएंगी दैट इज फोकस ऑन द वन पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा। और जो सोलर कुकर है बेटा, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका सोलर कुकर काम करता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करता है। क्या? सिमिलरली जैसे अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ के सरफेस में वेरियस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सन की रेडिएशन को अलाउ करती हैं अंदर आने में, लेकिन जो रेडिएशन अंदर आ चुकी हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उनको ट्रैप कर लिया किसने, द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द वेरियस गैसेस। और सिंपली इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं, कार के एग्जांपल से ले सकते हैं कि जो कार है अगर उसको हम धूप में खड़ा कर देते हैं तो उसके अंदर हीट बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सन की रेडिएशन हैं वो अंदर तो जा रही हैं कार के, लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है सोलर कुकर। तो सोलर कुकर दो तरह के होंगे आपके, एक होगा प्लेन मिरर वाला और एक आपका होगा कनकेव मिरर वाला। जो प्लेन मिरर वाला सोलर कुकर होगा उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कम अचीव होगा, लेकिन जो आपका वी कैन से दैट कि जो कनकेव मिरर वाला सोलर कुकर होगा उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा। क्लियर? सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द सोलर कुकर। तो ये कंस्ट्रक्शन है सोलर कुकर की। एक ब्लैक कलर का होगा, अंदर से ग्लास की शीट होगी और मिरर होगा। ग्लास की शीट का काम है सन की रेडिएशन को अंदर आने अलाउ करना है, लेकिन इट डजंट अलाउ दैट रेडिएशन टू गो आउट। एंड जो ब्लैक कलर है इट ऑब्जर्व द मैक्सिमम हीट, दैट्स व्हाई इट इज द ब्लैक कलर। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट मोर अबाउट। अब जो सोलर कुकर है बेटा, इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि इसको हम रात के टाइम यूज नहीं कर सकते, रेनी डे के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्लाउडी डे के अंदर यूज नहीं कर सकते, और इसके अंदर सिर्फ हम और जो फ्राई करने वाले डिशेज होते हैं जिनको फ्राई किया जाता है उसको हम नहीं कर सकते। तो अब इस लिमिटेशन को अचीव दूर करने के लिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि देयर इज अ नेक्स्ट डिवाइस। सो नेक्स्ट जो आपका है वो आएगा आपका सोलर सेल। क्लियर? अब सोलर सेल क्या है? अब बेटा सोलर सेल क्या है? एक सोलर सेल एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। व्हाट इज सोलर सेल? अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सोलर एनर्जी, जो सोलर सेल है वो कितनी एनर्जी या कितनी पोटेंशियल को कन्वर्ट करता है? तो जो एक टिपिकल सोलर सेल है बेटा, जो उसकी वोल्टेज होगी डेवलप करेगा, जो वोल्टेज वो करेगा 0.5 to 1 वोल्ट, और जो नियर अबाउट 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी व्हेन इट इज एक्सपोज टू सन, जो वो सन से एक्सपोज होगा। अब जो एक सोलर सेल है वो इतनी इनफ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता कि हम उसको डोमेस्टिकली प्रैक्टिकली यूज कर सकें। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसे विंड माइल था, एक की एनर्जी इनफ नहीं थी, उन सबको कंबाइन करके हमने विंड फार्म बनाया था। सो नाउ वी विल ज्वाइन और कंबाइन मैनी सोलर सेल इन अ अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे सोलर पैनल कहेंगे। क्लियर? तो ये आपका था सोलर सेल एंड सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर कंबाइन विद ईच अदर, और उन सबकी जो एनर्जी कंबाइन होकर जो एनर्जी मिलेगी वो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जो सोलर सेल है उसकी जो एनर्जी है नियर अबाउट दैट इज 0.7 वोट इलेक्ट्रिक। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल एडवांटेज एसोसिएटेड विद द सोलर सेल आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट। कि इनके एडवांटेज क्या है बेटा? इनके मूविंग पार्ट नहीं होते और बहुत ही कम मेंटेनेंस इनको चाहिए, और इनकी जो वर्किंग होती है वो क्वाइट एफिशिएंट होती है। क्लियर? और इनको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सोलर कुकर, उसके अंदर जो सन की लाइट है उसको फोकस करना जरूरी है कि पहले मिरर में फॉलो करेगी, मिरर के बाद फिर सोलर कुकर के अंदर जाएगी। यहाँ पे फोकसिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसके अंदर ये है, एडवांटेज का ये है कि द एरिया, हिली एरिया, क्लियर, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पावर लाइन को स्प्रेड करना, बिछाना, जो वहाँ पे एक्सपेंसिव है और बहुत महंगा है, तो वहाँ पे हम सोलर सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिमोट एरियाज मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन को हम नहीं लगा सकते।
उनको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक पोल लगाना, जैसे हिली एरियाज हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट्स हो गए, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक लाइन को नहीं बिछा सकते, तो वहाँ पे सोलर सेल की हेल्प से या सोलर पैनल की हेल्प से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सोलर सेल बना किसका है, मीन्स द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द सोलर सेल। तो आपका जो सोलर सेल है बेटा, दैट इज मेड ऑफ सिलिकॉन। किसका बना होगा, सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन हमारे अर्थ पे अवेलेबल है वो प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन फॉर मेकिंग अ सोलर सेल अ हाई ग्रेड सिलिकॉन इज रिक्वायर्ड, और जो बहुत लिमिटेड है। क्लियर। और जो दूसरा इसका और इसीलिए आपके जो इसकी मैन्युफैक्चरेशन है वो आपकी एक्सपेंसिव है। और दूसरा जो डिफरेंट सोलर सेल को जोड़ के सोलर सेल पैनल बनाया जाएगा, उनके जो इंटरनल कनेक्शन है दैट आर मेड विद सिल्वर, एंड सिल्वर इज आल्सो एक्सपेंसिव मेटल। सो एट द एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सोलर सेल है उसकी जो कॉस्ट हो जाती है दैट रीच वेरी हाई। क्लियर। अब जो सोलर सेल है उनका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया सोलर सेल। तो सबसे पहले जितने भी आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सारी सोलर सेल की हेल्प से की जाती है। यहाँ पे एक लाइन है, उसको हम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल एज मेंटेन सोर्स ऑफ एनर्जी। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन टू रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल्स। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां पे आपके सोलर सेल आपका काम करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। और अब तो देखो, देख ही रहे हो, नेक्स्ट थोड़े दिनों में आपकी इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी विच वर्क ऑन द सोलर सेल, कि उनकी जो चार्जिंग होगी वहाँ पे सोलर सेल लगे होंगे, उसी चार्जिंग से आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो चार्ज होंगी। क्लियर। नाउ सोलर पैनल काम कैसे करते हैं, वो लगाना कैसे, सिंपली दे आर माउंटेड ऑन द रूफ टॉप। क्लियर। और उनको ऐसे इस एंगल पे रख लगाया जाता है कि उसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ की जो सन की रेडिएशन है वो फॉल करे, और जैसी सन की रेडिएशन फॉल करेगी वो उस सन की रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर सोलर कुकर दिन में काम नहीं, रात को काम नहीं करता, रेनी डे में काम नहीं करता, या क्लाउडी डे में काम नहीं, तो सोलर सेल कैसे करेगा। तो जो सोलर सेल से बेटा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट एनर्जी स्टोर्ड, कि जैसे हमारा कोई सोलर सेल था उसने एनर्जी प्रोड्यूस की, उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे। क्लियर। और जब रात के टाइम सन नहीं होगा तो जो एनर्जी हमने स्टोर की है उस एनर्जी को हम यूज कर लेंगे। मतलब वहां पे पहले बैटरी की चार्जिंग होगी और जब सन नहीं होगा तो वहां पे होगी डिस्चार्जिंग। तो ये था आपका पहला अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। क्लियर। इसके अंदर हमने दो मेन पॉइंट आपको बताता हूँ क्या है मेन पॉइंट। जो इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि जो सोलर सेल हैं वो 0.5 to 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, और एक सोलर सेल आपका 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सिलिकॉन के बने होते हैं, इंटरनल कनेक्शन जो हैं वो आपके सिल्वर के होते हैं। इसका यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, रिमोट एरियाज में, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर इन सब का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज एनर्जी फ्रॉम सी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो पहला है वो टाइडल एनर्जी। सो वी नो दैट कि जो ग्रेविटेशन पुल है मून का, उसकी वजह से जो वाटर का लेवल है सी के अंदर वो राइज और फॉल करता है, जिससे टाइड्स बनती हैं। तो उन टाइड से जो हम एनर्जी लेंगे उसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी क्या है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। तो जो टाइडल एनर्जी है इसको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज जो आपकी वेव जो टाइड्स हैं वो राइज करते हैं और फॉल करती हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, वी विल बिल्ड अ डैम अक्रॉस द शोर ऑफ द सी व्हेन टाइड राइजेस, सो the gate of the dam will open and the water fall into the dam. तो जब डैम के अंदर वाटर फॉल करेगा तो दैट फॉल ऑन द टर्बाइन एंड टर्बाइन रोटेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। एंड व्हेन देयर इज लो टाइड, जो वाटर आपका डैम में स्टोर हो गया था उस वाटर को हम डैम से बाहर निकाल देंगे। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपकी एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट होती रहेगी पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है डैम टाइडल एनर्जी की वो ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइड मस्ट बी वेरी हाई, कि टाइड आपकी जो है वो हाई होनी चाहिए। हर जगह टाइड हाई नहीं होती, तो हर जगह इसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। और दूसरा जो दिन के अंदर
टाइड का राइज और फॉल होता है दैट इन 2 टाइम्स, कि एक बार टाइड राइज करते हैं, एक बार टाइड क्या करती हैं, फॉल करती हैं। सो जो नेक्स्ट आपकी है वो है वेव एनर्जी। अब जो वेव एनर्जी है कि जो सी है बेटा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती हैं, तो जो विंड ब्लो करती हैं तो मीन्स दे कैरी काइनेटिक एनर्जी। तो उन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो आपका सी वाटर है दैट जनरेट वेव्स, कि उस वहाँ पे सी वाटर की वेव बन जाती हैं। तो अगेन दैट वेव आर मूविंग वेव्स, तो ये वेव है उनकी होगी काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे टू रोटेट द टर्बाइन, और जब टर्बाइन रोटेट होगा तो आपकी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। सो नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है सी का वो आपकी है ओशन थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर क्या है बेटा कि जो सी वाटर का सरफेस वाटर है और जो डीप अंडर वाटर है नियर अबाउट 2 किलोमीटर, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, कि जो सरफेस वाटर होगा हीट की, जो सन की रेडिएशन उससे हीट हो जाएगा, लेकिन जो डीप सी वाटर है वो हीट नहीं होता। क्लियर। उसी टेम्परेचर डिफरेंस को हम यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट हैं वो उन्हीं जगह पे लग सकते हैं जहां पे सरफेस वाटर का टेम्परेचर और डीप अंडर सी वाटर नियर अबाउट 2 किलोमीटर जो उनका टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल बी 20 डिग्री से और मोर, कि 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा ये आपका, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ लिक्विड यूज करेंगे, इसको आप अमोनिया कहते हैं। तो जो अमोनिया है जब वो सरफेस पे होगा तो ड्यू टू द हॉट वाटर इट कन्वर्ट इनटू स्टीम, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट स्टीम हिट द टर्बाइन एंड टर्बाइन रोटेट्स। सो नाउ फिर हम क्या करेंगे, जो डीप सी वाटर है वहां से हम कोल्ड वाटर लेके आएंगे, और उस कोल्ड वाटर की हेल्प से जो अमोनिया की स्टीम बनी थी, जो अमोनिया के वेपर्स बने थे, उनको अगेन हम अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देर इज अ होलो सिलेंड्रिकल पाइप होंगी जो एक के ऊपर दूसरी होगी, मतलब इनर के अंदर अमोनिया फ्लो करेगा, आउटर के अंदर कोल्ड वाटर फ्लो करेगा। वो कोल्ड वाटर जो है वो उस अमोनिया, जो अमोनिया के वेपर बन गए थे, उनको दोबारा से वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो इन दैट वे वो अमोनिया बार बार आपका सर्कुलेट होता रहेगा, और जो आपकी स्टीम है वो टरबाइन को हिट करती रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 डिग्री होना चाहिए, और जो लिक्विड यूज होगा वो अमोनिया होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो अल्टरनेट सोर्स है वो जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स बेटा ये कनेक्टेड है अर्थ क्रस्ट से। अब वी ऑल नो दैट कि इन द अर्थ कोर देयर इज मोल्टन मैग्मा, जो अर्थ का कोर है वहां पे मोल्टन मैग्मा है। ड्यू टू ज्योग्राफिकल चेंजेस दैट मोल्टन मैग्मा राइजेस, ये मोल्टन मैग्मा क्या होगा, राइज होगा, एंड इट ट्रैप इन द अर्थ क्रस्ट, कि जो ज्योग्राफिकल चेंज से जो मोल्टन मैग्मा था वो राइज किया एंड इट ट्रैप्स इन द अर्थ क्रस्ट, एंड वेयर इट ट्रैप दैट इज नोन एज हॉट स्पॉट। जहाँ पे ये ट्रैप होगा उसको बोलेंगे हम हॉट स्पॉट। तो वहां बन गई एक हॉट स्पॉट, और जो उस हॉट स्पॉट के अराउंड वाटर होगा दैट इज हीट्स अप और इट कन्वर्ट इनटू स्टीम। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कई बार आपने देखा भी होगा जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द राइज ऑफ मोल्टन मैग्मा विच ट्रैप इन द अर्थ क्रस्ट फॉर्म्स द हॉट स्पॉट। क्लियर। और इसके बाद जो वो स्टीम होगी उसको विद दी हेल्प ऑफ ड्रिलिंग से हम उस स्टीम को पाइपों की हेल्प से बाहर लेके आएंगे। वो स्टीम फिर से टरबाइन को हिट करेगी, टरबाइन रोटेट करेगा, तो जनरेटर रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सो जो आपका जियोथर्मल एनर्जी है बेटा इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है, ये नेचुरल सोर्स आपका है। और जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और न्यूजीलैंड है यहाँ पे आपके बहुत सारे जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं। क्लियर। तो ये आपकी थी जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे एक तो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट के बारे में डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आती है न्यूक्लियर एनर्जी। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये दो तरह से जनरेट होती है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे दो पॉइंट बनेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। अब फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना। अब फ्यूजन, फ्यूज मतलब फ्यूज हो गए, जुड़ गए, फिजन मतलब टूटना, टूट गए। क्लियर। तो हम डिस्कस करेंगे पहले फिजन को। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो बेटा जो न्यूक्लियर फिजन होता है
इसके अंदर जो आपके होते हैं जो हैवी न्यूक्लियस हैं दैट स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, क्लियर, एंड आल्सो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। अब ये टूटें कैसे, दैट इज रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट टू और 1 or 2 लाइन्स। द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरिनियम व्हेन बोम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन, कि जब हम किसी भी इन 3 एटम के न्यूक्लियस के ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट कराएंगे, इट कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, कहता है ये आपका 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। व्हेन दिस इज डन अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज if the mass of the original nucleus is just little more than the sum of the mass of the individual products। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस देखेंगे कि जो एटम का न्यूक्लियस टूटने से पहले और जो टूटने के बाद 2 न्यूक्लियस बने हैं उनके मास में डिफरेंस होगा। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम होगा। जो थोड़ा कम मास हुआ है दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, जो हीट में कन्वर्ट हो गया। The fusion of an atom of uranium, for example, produce 10 million times the energy produced by the combustion of atom of carbon or coal। अब यहाँ पे इसने एक पॉइंट लिखा है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ने ध्यान से देखना है। The fusion of an atom of uranium, for example, produce 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from the coal। कि अगर हम कार्बन के एक एटम को जलाते हैं और यूरेनियम के एक एटम को हम तोड़ते हैं तो यूरेनियम के केस में 10 मिलियन टाइम एनर्जी आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये आपका वी कैन से दैट ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अब वही है जो यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी, उस हीट एनर्जी को हम वाटर को हीट करने के लिए यूज करेंगे, उस वाटर को हीट किया जाएगा, उससे वो स्टीम प्रोड्यूस हुई, उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख रही है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अभी जो बेटा E है एनर्जी प्रोड्यूस, डेल्टा में है डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो जितना डिफरेंस मास का होगा उतनी ही वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस, और जो C यहाँ पे होगा आपका कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे कुछ एक और फैक्ट फाइल लिखी हुई है, यहाँ पे इस फैक्ट फाइल में मेंशन यहाँ पे किया गया कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्लियर। और जो इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे आप लिख रखे हैं, यहाँ पे पढ़ देख सकते हो आप कि तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, क्लियर, तमिलनाडु में है, यूपी में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है। क्लियर। ये आपके वेरियस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सिचुएटेड किए गए। अब यहाँ पे आते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। कि बेटा जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है दैट इज वेरी लेस, कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वहां पे आपका जो फ्यूल है वो बहुत कम चाहिए। क्लियर। लेकिन जो आपका कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसमें कोल बहुत चाहिए, मतलब 1 kg यूरेनियम और 25 लाख टन कोल सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। और आपका क्लीन फ्यूल है, यहाँ पे कोई भी आपका स्मोक नहीं निकलता, देयर इज नो रिलीज स्मोक। क्लियर। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आपका। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसको हमने डिस्कस करना है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। कि बेटा जब यूरेनियम टूटता है, स्प्लिट होता है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, सो इट प्रोड्यूस रेडिएशंस। क्लियर। और जो वो रेडिएशन है दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स, कि जो वो रेडिएशन होंगी वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। उन रेडिएशन की वजह से बहुत सारी आपकी स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेज, ल्यूकीमिया, ये आपकी डिसीजेज हो सकती हैं, वहाँ पे निकलती है हार्मफुल रेडिएशन। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट निकलता है उसके डिस्पोज की प्रॉब्लम रहती है। डिस्पोज मीन्स उसमें से भी रेडिएशन निकलती रहती है, जिसकी वजह से कोई भी लिविंग बींग के, और इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर आता है इन रेडिएशन को अगर कोई एक्सपोज हो जाता है। क्लियर। Improper nuclear waste store and disposal result the environmental contamination. Further, there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation. The high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination, and limited availability of uranium makes a large-scale use of nuclear energy prohibited. Nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power station
were designed. The fundamental physics of fission chain reaction in nuclear weapon is similar to the physics of controlled nuclear reactor, but the two type of devices are engaged quite differently. पहले जो आपका था, इसके जो आपके हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह हैं उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, बाद में इसका यूज किया था टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका उल्टा न्यूक्लियर फिजन का। अब फ्यूजन में क्या था कि जो हैवी न्यूक्लियाई थे वो स्प्लिट हो गए थे लाइटर के अंदर। अब फ्यूजन में क्या होगा, द लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी आल्सो। और जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है दैट इज टेक प्लेस इन सन। सन में कहाँ से एनर्जी आ रही है, सन के अंदर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपके कंबाइन होके हीलियम बना रहे हैं, एंड इट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी आल्सो। जब आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे उसके साथ बहुत सारी आपकी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे दो टॉपिक है आपके, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, किसका, न्यूक्लियाई का। हैवी टूट के लाइटर बनाएंगे, लाइटर जुड़ के हैवी बनाएंगे। लिमिटेशन क्या है, रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन से बहुत सारी हमें डिसीज हो सकती हैं, और वो रेडिएशन जो है दैट आर वी कैन से दैट इज बैड इफेक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स। क्लियर, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्किन कैंसर, क्लियर, ल्यूकीमिया, ये आपकी डिसीज हो सकती है, इसकी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपके जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उनके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस कि एज हमारी जो एनर्जी की नीड बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी की नीड बढ़ती जा रही है, हम जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारा अच्छा होता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी की नीडें बढ़ती जा रही हैं, तो उसको फिल करने के लिए हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को क्या क्या हार्म होगा ये हमने डिस्कस किया है, करेंगे इसके रिगार्डिंग। जो सोलर है बेटा उसका कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं है, वो पोल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फॉसिल फ्यूल का इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट है। क्लियर, रेडिएशन जो निकलेंगी सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से, उसका भी इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज पोल्यूशन फ्री। बट इसके अंदर भी एक पॉइंट आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सुटेबल फॉर द सोलर कुकर एंड वाई। तो अभी डिस्कस किया कनकेव, क्यों, क्योंकि वो सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर ही आपका फोकस कर देगा और वहां पे हीट बहुत बढ़ जाती है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, तो बेटा सबकी लिमिटेशन यहाँ पर लिख देंगे, तीनों की। पहली लिमिटेशन है कि हर जगह जो टाइड्स होती हैं उन इतनी हाई नहीं होती कि वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम दैम। और दूसरा पॉइंट जो वेव से मिलती है वो हर जगह इतनी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो नहीं करती कि वहाँ पे फास्ट मूविंग वेव प्रोड्यूस हो। और तीसरा, हर जगह पे आपका सरफेस वाटर और डीप सी वाटर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं होता, 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता कि वहाँ से आपके जो वोलेटाइल लिक्विड अमोनिया है उनको हम वी कैन हीट करके उनको वेपर में कन्वर्ट कर सकें। तो तीनों की लिमिटेशन वही आप पीछे जो हमने डिस्कस किया वहाँ से आप लिख सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, तो आप वही क्वेश्चन है वहीं से आपने लिखना है, हॉटस्पॉट वगैरह जो आपका आएगा। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहले बेटा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वहाँ से किसी भी तरह का स्मोक नहीं निकलता, और इसके अंदर जो फ्यूल है दैट रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, एंड देयर इज नो नीड टू इंसर्ट फ्यूल अगेन एंड अगेन, यहाँ पे फ्यूल को बार बार डालना नहीं पड़ता। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहला एडवांटेज, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। It doesn't produce smoke, so it is pollution free. Number 2, clear, small amount of fuel is required, small मतलब एनर्जी ज़्यादा, फ्यूल कम चाहिए, and there is a no need of insert fuel again and again। तो ये आपकी एडवांटेज हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। ये जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है इसके अंदर हमने पढ़ना है कि जो आपका कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पोल्यूशन फ्री नहीं है। अब कईयों के माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि सर विंड एनर्जी, सर सोलर एनर्जी, सोलर सेल, ये सारे पोल्यूशन फ्री तो हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन बेटा इनको जहाँ पे आप लगाओगे इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनको एक जगह से दूसरी जगह से पहुँचाने के लिए आपको या तो
इनको या तो रेलगाड़ी के थ्रू, रेलवे के थ्रू ये आएंगी, या प्लेन के थ्रू आएंगी, या बाय रोड आएंगे। तो रेल, रोड और बाय एयर, तो वहाँ पे जो भी आपके व्हीकल होंगे वो किसको यूज़ करते हैं? दे यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल होंगे वो बर्न होंगे। तो इनकी इंस्टॉलमेंट के ड्यूरेशन में इनको जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट को हार्म होता है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो कह रहा है कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट? तो बेटा कोई भी सोर्स आपका पोल्यूशन फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट को हार्म जरूर होता है। अब मैंने डिस्कस किया कि जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर कुकर है, सोलर सेल है, और आपका विंड माइल है, विंड एनर्जी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे डजंट प्रोड्यूस एनी स्मोक, लेकिन ड्यूरिंग देयर इंस्टॉलमेंट to transport one place to another place, vehicle are used, so vehicle use the fuel and that fuel burns and produce smoke, and which that smoke harm the environment. Next आता है hydrogen has been used as a rocket fuel, would you consider it cleaner than fuel than CNG, why or why not? सिंपल है yes, जो हाइड्रोजन है बेटा ये आपका क्लीनर फ्यूल है CNG से। जो CNG है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर होता है कार्बन, और जब इसको हम बर्न करते हैं, जब इसकी कंबल्शन होती है तो कार्बन है तो वहाँ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो इट डेफिनेटली हार्म द इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। लेकिन जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, दैट हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर, वहाँ बनता है पानी। क्लियर? तो जो CNG को बर्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। तो जो रॉकेट फ्यूल है, जो हाइड्रोजन है, वो एक बेटर फ्यूल है किसकी कंपैरेटिवली? CNG के। लेकिन इसको यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज जो हाइड्रोजन है बेटा दैट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल और हाईली एक्सप्लोसिव, इसलिए इसको हम डोमेस्टिकली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट आपका हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? सो बेटा अगर विद सेम रेट वी विल यूजिंग एनर्जी रिसोर्सेज एंड इफ एनर्जी डिमांड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो जो आपके नॉन रिन्यूएबल हैं और जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं दे मे फिनिश वन डे। और जो दूसरी तरफ आपका जो बायोमास है, क्लियर, जो हमें एनिमल से मिलता है, दे मे बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वी कैन रीजनरेट दीज सोर्सेज। क्लियर? तो इसके अंदर आपका ये था। इसके बाद आपका आता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आप वही है, रिन्यूएबल वो हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो होंगे जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, दे मे बी फिनिश वन डे, दे डिडंट लास्ट लॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है नेम द टू एनर्जी रिसोर्सेज दैट वुड यू कंसिडर रिन्यूएबल एंड गिव रीजन। तो बेटा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सारे आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ टू एनर्जी सोर्सेज विच वुड बी कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल होता है नॉन रिन्यूएबल। गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अब दो सोर्सेज कौन से हैं आपका? कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टेबल हैं बिकॉज दे मे फिनिश वन डे। सो दीज आर योर क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस NCERT एंड टेक्स्ट। तो NCERT एंड टेक्स्ट में पहले कुछ आपके MCQs हैं, उनको देख लेते हैं। अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, कब? जब सन नहीं होगा। सन कब नहीं होगा? सन आपका नहीं होगा, कब नहीं होगा? क्लाउडी डे में नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो बायोमास यहाँ पे कौन है? वुड भी बायोमास है, गोबर गैस भी बायोमास है। अब यहाँ पे कोल लिखा हुआ है, बच्चे सोचते हैं कोल कहाँ से बायोमास होगा। अब जो कोल आपका बना है बेटा दैट इज अ डेड रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल विच आर ऑन द अर्थ लॉन्ग ईयर एगो बैक। मतलब जो कोल बना है वो भी डेड रिमेन से बना है, किसके? प्लांट और एनिमल के। तो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो आपकी बायोमास नहीं है। नेक्स्ट आपका मोस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी। अब जो जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर, देखो विंड है जो वो सन की वजह से ब्लो करती है, अनइवन हीटिंग होती है। बायोमास भी सन की वजह से बना है। अब यहाँ पे आता है जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब जो जियोथर्मल एनर्जी है वो मोल्टन मैग्मा से बनी है। मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के क्रस्ट में लॉन्ग ईयर बैक जो जोग्राफिकल चेंजेस हुए थे, तो ये जो उस टाइम के लिविंग थिंग्स थी उनसे ही बना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं
वो नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन जो सन है इट लास्ट फॉर द 5 बिलियन ईयर एगो मोर, और आपका वो आपका एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो सन से एनर्जी मिलेगी दैट इज पोल्यूशन फ्री, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एंड द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स इट हार्म द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बायोमास है दैट इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर। और जो आपका बायोमास होता है दैट इज बोथ आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और आपका बायोमास दोनों ही रिन्यूएबल हैं। क्लियर। जो बायोमास है उसको हम कह सकते हैं कि बोथ आर इको फ्रेंडली आल्सो, बोथ आर इको फ्रेंडली आल्सो। क्लियर, दोनों इको फ्रेंडली हैं। और इसके अंदर एक दो पॉइंट हमने जो पीछे डिस्कस किया, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपेंसिव है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं, जो हमने डिस्कस किया, सोशल इफेक्ट हो गया, इकोनॉमिकल इफेक्ट हो गया। क्लियर। एंड जियोलॉजिकल इफेक्ट जो आपके थे वो सारे हम इसके अंदर लिख सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम विंड। विंड में वही बेटा, द विंड मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, द विंड स्पीड मस्ट बी 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। वेव्स के यहाँ आपकी हर जगह स्ट्रॉन्ग वेव ब्लो नहीं करती, हर जगह हाई टाइड्स नहीं होती, ये आपकी लिमिटेशन है। ऑन वट बेसिस यू वुड क्लासिफाई द रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी यूज अगेन अगेन। एग्जॉस्टेबल जो एक दिन फिनिश हो जाएंगे, इनएग्जॉस्टेबल जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे। वट आर द क्वालिटी ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। इकोनॉमिकल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ये सारा इसके अंदर आप लिखना है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सारा इसके अंदर आएगा। वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। आर देयर प्लेस वेयर सोलर कुकर वुड बी हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो बेटा जहाँ पे सन थोड़े टाइम के लिए साइन करता है वहाँ पे उनकी लिमिटेड यूटिलिटी होगी, तो वो आप कहेंगे पोल्स। जो पोल्स है बेटा वहाँ पे आपका सन बहुत ही कम टाइम के लिए निकलता है, वहाँ पे उनकी लिमिटेड यूटिलिटी है। एडवांटेज ये इको फ्रेंडली है, चीप है। क्लियर। डजेंट प्रोड्यूस स्मोक। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, रेनी डे में यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर, क्लाउडी डे में यूज़ नहीं कर सकते, नाइट के टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हमने देखना क्या है। वट आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, वट स्टेप शुड बी सजेस्टेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। तो भाई इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इफ वी आर यूजिंग आर conventional source of energy like coal and petroleum with the same rate, they may be finished one day. Also burning of these fuels release lots of harmful gases like sulfur dioxide, sulfur tricarbon dioxide, which combine with water to create acid rain, which are bad effect on our soil. Clear. Also many we can say that global warming is main point है, environmental consequences हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप सजेस्ट क्या करोगे, क्या फर्स्ट वी हैव टू थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वी विल रिड्यूस आर नीड्स, अपनी नीड्स को रिड्यूस करेंगे। क्लियर। फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेज वी विल यूज़ बाईसाइकिल्स, और वी विल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, स्विच ऑफ लाइट करेंगे। क्लियर। ये सारा इसके अंदर आप लिखना है कि आप कैसे एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हो, कि बाय वॉकिंग, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाय वॉकिंग जाएंगे, टाइम टू टाइम जो आपकी इंजन्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस रखें। क्यों रखेंगे मेंटेनेंस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था अगर कंप्लीट कंबल्शन होगी तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और स्मोक कम होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबल्शन है तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कम प्रोड्यूस होगी और स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम एनर्जी रिसोर्सेज को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ईजी चैप्टर बेटा। क्लियर। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आसपास की चीज़ों को जानते हो। क्लियर। तो इस चैप्टर को आपने साथ साथ इसकी लर्निंग भी कर लेनी है, लर्निंग के साथ साथ इसको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट भी कर लेना है। थैंक यू।